کاتے ہاں جی ادھر مان لو. ہاں جی. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جب عورتیں غسل کرتی ہیں تو ان کے بال باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جی تو ان کو بال کھولنے اور سارے گیلے کرنے ضروری ہے یا صرف جڑوں کو ہی وہ پانی نکالے تو ان کا غسل ہو جائے گا؟ نہیں، پورا کھولنے بھی پڑیں گے اور ہر بال کے اوپر پانی گزارنا پڑے گا. اگر ایک بھی بال خشک رہ گیا یا جلد تک پانی نہیں پہنچا، یعنی کہ بال باندھے ہوئے ہیں جی، اور جلد تک پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا. یعنی کہ بالوں کو جلد سے لے کر آخری کونے تک سر تر ہونی چاہیے. تر بتر ہونے چاہیے اور پانی بہنا چاہیے. اور یہی ہمارے خاندانوں میں اکثر صفت پائی جاتی ہے. یہ بات آگے بڑھاتے ہیں، بات پوری کرنا ہے. جی، دوسرا میرا سوال جی دوسرا سوال یہ ہے کہ غسل اگر واجب ہو گیا ہاں جی کسی مرد پر یا عورت پر جی اور وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن پانی اس کے پاس ٹھنڈا ہے، گرم نہیں ہے، ہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کا، ہاں اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہاں. تو اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہے تو وہ تیمم سے اس کا نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پاک ہو کے جائے گا؟ آخری وقت تک وہ ذرائع کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے نا. فرض کیا آج کل فجر میں سورج کتنے بجے نکل رہا ہے؟ 50 منٹ میں. 50 منٹ میں. ہاں 6:50. جی جی ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں کہ مثال دے رہے ہیں، یہ ٹائم فکس نہیں ہے، آج کے دن کے حساب سے ہے. 6:50 پہ سورج نکل رہا ہے، 6:40 تک وہ کوشش کرے گا پانی گرم کرنے کی. ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس 6:40 تک گرم پانی کا بندوبست نہیں ہو سکا اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ نہانے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ. اب یہ تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے اکٹھا ہی ہے. ایسا نہیں ہے غسل کے لیے الگ تیمم ہے، وضو کے لیے الگ تیمم ہے. نہیں، ایک ہی تیمم دونوں کاموں کو کافی ہے. ہاں. اب اس میں یہ ہو گیا فتویٰ. آگے تقویٰ اولیاء کا راستہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے بھی کر لو، بعد میں نہا کے قضا بھی پڑھ لو. تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں بندہ شامل ہو سکے. ٹھیک ہے. آگے اگلا سوال میرا، صاف مٹی سے تیمم کر لیا جی وضو کے لیے جی. اور وہ مٹی اگلی نماز کے لیے وہی مٹی دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے؟ مٹی وہی استعمال ہوگی، جس پہ ہاتھ لگا کے تیمم ہو گیا ہر باری وہ پاک، وہی مٹی استعمال ہو وہی جائے گی؟ مٹی ہر باری استعمال ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی کسی اور بات. جی حضور میرے کچھ سوالات. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور گیزر لگا ہوا ہے جی اور فیسلٹیز پراپر ہے، ٹوٹیوں میں گرم پانی ہے، ہاں تو نارمل پانی کی گرمائش کو وہ وال سے کر لیتا ہے. نارمل پانی میں غسل کر سکتا ہوں، دوسری ٹوٹی چلا کر نیچے بالٹی کی ضرورت عذر نہیں ہے. ہاں. تو کھڑے ہو کر غسل کرے گا یا بیٹھ کر کرے گا؟ یعنی کہ جو بھی معاملات ہیں اس میں تھوڑی سی روشنی فرما دیجیے. دونوں طرح ٹھیک ہے. ویسے کھڑے ہو کر غسل کرنے کو مکروہ سمجھا گیا، وہ کہا گیا. ٹھیک ہے. بے ادبی ہے، اس بات کا پہلو ہے کہ بے شرمی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر چار دیواری بند ہے جیسا کہ آج کل کے غسل واش خانے روم میں ہیں ہو جی تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر مطلب وہ معاملہ جو مائع مستحمل والا وہ بھی نہیں وہ تو پائے گا. ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور ہاں، ٹوٹی کو جو اس ہاتھ میں لگایا گیا وہ اس کو بندہ دھو اس کو لیتا دھو ہے. لیتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز رہ جاتی ہے، چھینٹیں واپس پڑنا. پانی جب اوپر سے گرتا ہے اس کے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ واپس جسم پر لگ جاتے ہیں، وہ چھینٹے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں. جی اس کے لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل میں پہلے وضو کیا اور وضو کے پیر نہیں دھوئے.
पैर नहीं। वजू बाकी सारा कर लिया, जी हुजूर। पैर छोड़ दिए, फिर पूरा गुस्ल किया। अच्छा अच्छा। पूरा गुस्ल करके पैर आखिर में धोए। बात समझ आ गई कि वजू को करके पूरा गुस्ल करके पैर के ऊपर शक था ना भी गीली जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, छींटे पड़ रहे हैं, छींटे पड़ रहे हैं। उसका सलूशन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया कि पैर को एंड पे धो लो दोबारा से। पाँव खड़े होके गुस्ल किया, छींटे पड़ने का शक है ना, सारा नाल या सर बाजू गर्दन जो भी ऊपर घुटने तक समझ लो सेटिंग हो गई। जी हुजूर। अब क्लोजिंग कर रहे हैं, अब थोड़ा सा पानी एहतियात से घुटनों से नीचे नीचे डाल दो दोबारा, ताकि छींटे वापस ना जिस्म आए, पर ना और अगर कोई छींटे आए थे तो वो निमट गए। और पानी का बहना भी जरूरी है, अगर ठहरना नहीं कि वो अगर ठहरेगा तो सारे बाद वो ऊपर आएगा। बिल्कुल। जी दूसरा सवाल है हुजूर, रोज़ा जैसे आगे शुरू हो रहे हैं हुजूर वाला, इसको मतलब रोज़े खातिर रखते हुए, जी और रोज़ा है, रोज़ा रखना भी है, हाँ सहरी का टाइम है, लेट हो गए हैं, उठने में वक्त बहुत काम था कि सहरी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया, ठीक है। ख़त्म होने वाला है, रोज़ा भी रखना है, मियाँ बीवी दोनों ने हाँ मतलब मामलात किए हैं, हाँ तो उसमें पकाना उसने और ज़ाहिर बात रोज़ा रखना है, हाँ तो वो पकाएगी कैसे, गुस्ल करेगी तो फिर टाइम गुजर जाएगा, बंदा अगर गुस्ल करेगा तो मतलब ये सारे मामलात में ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी के गर्म करने के मामलात हैं, गैस के प्रॉब्लम्स भी है, तो इसमें कहाँ तक इस्लाम में मतलब गुंजाइश है कि सहरी कर सकते समझ हैं? गए। इसका जनाब मुख्तसर जवाब यह है कि खातून ऐसी हालत में तयम्मुम करेगी, तयम्मुम करें, वजू और गुस्ल दोनों का इकट्ठा, ठीक है हुजूर, और जैसे पहले वो फरमाया, खाने का काम फटाफट निपटाएगी। ठीक है हुजूर, बंदा अगर टाइम पे उठ गया ठीक है हुजूर, तो गुस्ल कर सकता है तो कर लेगा। जी फ़र्ज़ किया वो नहीं टाइम पे उठ हाँ। पाया, उसके पास टाइम ही इतना है कि क्या या कहते सहरी हैं, कर ले या गुस्ल कर ले, बस या सहरी कर ले या गुस्ल, तो वो करेगा वजू। वो करेगा वजू, ठीक हो गया, गुस्ल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो वजू करेगा। वजू करेगा। सहाबा कराम से साबित है कि एक मशहूर साहबी, जब ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो आप वजू करके खाना खा लेते थे, फिर उसके फ़ौरन बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ लेते थे। जी इसमें समझ आ गया, यानी वो टोटी को फिर वही मामला कि पहले हाथ धोने, उसमें भी वजू में भी हाथ धोना पहले ज़रूरी है, हाँ पाक करना फिर टोटी को अपने रखना, ठीक है। दूसरा तीसरा सवाल हजूर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हजूर ने फरमाया कि जो माए मुस्तअमल वाला पानी है हाँ उसे गुस्ल तो नहीं होगा क्योंकि वो माए मुस्तअमल हो गया, हाँ और दूसरी हालत में कि पानी अवेलेबल भी नहीं है, हाँ पानी अवेलेबल भी नहीं है हाँ कि हम उसका वो कर लें, तो आपने फरमाया कि एक तरफ से डालना और दूसरी तरफ वो निकलता रहे, हाँ दूसरे पानी का अरेंजमेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो आपने फरमाया कि भी वो पानी माए मुस्तअमल वाला जो था वो आप पी सकते हैं, गुस्ल नहीं उससे करेंगे, इसके ऐसा जुमला हो तो पीना वो तो माए मुस्तअमल हो गया, जो गुस्ल अगर नहीं हो सकता तो वो पीना में कैसे आएगा? अगर पानी की बाकी दो सिफतें मौजूद हैं, पानी की तीन ज़ाती सिफात हैं जी हजूर, ज़ाहिरी, वैसे ये दो भी इसकी ज़ाती सिफात ही हैं, अल्लाह ने अता की हैं, लेकिन जो दो सिफात तीन सिफात हैं, रंग, बू और ज़ायका, तीन में से अगर दो चीज़ें उसके पास हैं तो वो पानी पाक है, यानी ताहिर है। ठीक है, वो मुतहर है या नहीं ये अलग चीज़ है। अल्लाह ताहिर है पिया जा सकता है। हजूर सवाल ही सीखने से फिर सवाल है, अंदरून का हिस्सा जो हम जो पानी को पी के अंदर जा रहा है पानी, हाँ और एक बैरून है यानी कि बाहर का हाँ। गुस्ल है, तो बाहर से अंदर गुस्ल वाला के काम मामला तो नहीं आ रहा ना, पाकी के काम नहीं आ रहा, पीने का काम आ सकता है। वो पाक है, पीने के काम आ सकता है। बड़ी कश्मकश में पड़ गया हूँ मैं उस वक्त से अभी तक परेशान हाँ यानी कि कि अगर वो पाक है, पी तो लिया, वो पाक है तो फिर पाक गुस्ल में क्यों नहीं गया सकता? पाक कर नहीं सकता। ये दो सिफतें, यही तो पॉइंट हमारा शुरू से चल रहा है, बहुत पाक करने की ताकत और खुद पाक होने की सलाहियत। खुद पाक है तो पियो, उससे हाथ धो लो, उससे कुछ भी
कर लो, पाक कर नहीं सकता। ठीक हो गया, यानी रूटीन में उसको यूज कर सकती है, कुछ जैसे भी कि उससे काम हो सकता है जहाँ पाक पानी चाहिए, जहाँ पाक पानी चाहिए, लेकिन जहाँ पाक करने वाला पानी चाहिए वहाँ के काबिल नहीं रहा। वहाँ के काबिल नहीं रहा। ठीक हो गया सर, ठीक हो। पॉइंट को जरा दोबारा, जी जी कि पाक करना और पाक होना, पाक है ठीक है, पाक कर भी सकता है कि नहीं ये अलग चीज है। ये लगती है पाक करने की ताकत चली गई, लेकिन खुद पाक है, साफ है, पी सकते हैं, उसमें कोई नापाकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वजू का पानी सहाबा कराम पीते थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी, ठीक है सर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते थे, जी पीतर, बर्तन में पानी जमा करवा कर सहाबा खा लेते थे और पी लेते थे। जी सर, ऐसे ऐसे वही माए मुस्तम्बल है। हाँ, हमारा अकीदा इस माए, यहाँ पे माए मुस्तम्बल से हट के हमारा तो अकीदा ये है ना अहले सुन्नत का, कि वो माए मुस्तम्बल होने की बजाय सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लगने वाला पानी, तो वो तो समझो हमारे लिए तो आबे ज़मज़म भी जैसा है, अल्लाह अकबर। वो तो हमारे लिए मुकद्दस तरीन पानी हो गया, वो तो आबे हयात हो गया हमारे लिए, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लगा है। हाँ जी, हजूर, लेकिन उर्फी तौर पर जी जी हजूर, कायदा इससे ये है कि वज़ू का पानी पाक है, वो पिया जा सकता है। चेहरे पे पानी के कतरे आए, जुबान में चले गए, पी सकता है। कोई हर्ज नहीं, पाक है। हो गया। वो पाक कर नहीं सकता, खुद पाक है, पिया जा सकता है, खाने में डाला जा सकता है, आटे में डाला जा सकता है, किसी भी और जहाँ पे पाक करने वाला काम ना हो वहाँ वो इस्तेमाल। यहाँ पर मैं तो अपने दोस्तों से भी अर्ज करूँगा कि ये बड़ा पेचीदा से सवाल बन गया है। इसमें कोई आपके ज़हन में सवाल है तो आप कर सकते हैं, किबला शाह साहब से बरक़ात आप लूट सकते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा एहसास है कि इस नशिस्त में किबला का जो है ना ठीक है। ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ख्वाजगान ਅਸੀਂ पढ़ सकते हैं, ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, आया पढ़ कि सकते सही है मुनासिब है। बिल्कुल है, पढ़ सकते हैं। बाद ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अजान आखनी है, हाँ जी, फिर ਅਸੀਂ नमाज पढ़नी है। बिल्कुल ठीक ਇਹਦਾ है, कोई इतराज़ नहीं, कोई इतराज़ कोई इतराज़ नहीं अंदर। ठीक उस वक्त खान का ही मिल जाता जी। हाँ, कोई इतराज़ नहीं, थोड़ा करीब करीब है। ये बगैर चीनी वाला है, चीनी वाला ठीक है। सिलसिला रोकना है कि चलना है? नहीं नहीं, गुफ्तगू चलती रहेगी। जी, किसी भाई ने मैंने जो अर्ज की कोई, इमाम साहब के सवाल से जी मैंने अर्ज किया कि इसमें अगर कोई आप पूछना चाहते जो सवाल चल रहा है माए मुस्तअमल वाले मामले में। पीरा मौलविया की गल कभी मुक्की। इमाम साहब के सवाल से जो मिट्टी की बात है ना, रोज़े में आपने कहा था औरत वो मिट्टी से तयम्मुम करें, लेकिन रात के टाइम यहाँ पे तो गर्मी तो अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पे जैसे ये इलाका है बाहर बाजार में भी ये मिट्टी पाक नहीं होती, उसको दूर जाना पड़ेगा मिट्टी लेने के लिए। लेकिन उसके लिए उलमा ने एक और चीज़ भी दी है, वैसे वजाहत की है इसके। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो ये कि कोशिश की जाए सारा कुछ ऐसा मैनेज ही रहे, इस काम की तरफ आना ही नहीं, ये आखिरी ऑप्शन है, इंतहाई मजबूरी का आखिरी ऑप्शन है, इसकी तरफ नहीं जाना। लेकिन चूंकि सवाल है समझने के लिए, ठीक है। जो गर्दों को बाहर है ना, गर्द ये पाक मिट्टी है। क्या चीज़ है? पाक मिट्टी। कौन सी चीज़ है? इधर नहीं, मुझे क्या घर में होती है? कुछ ऐसा कि इधर से ऐसे चले। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दीवारों के साथ। अगर दीवार के ऊपर सफ़ेद चूना खुशक है, उतरता है, वो मिट्टी की किस्म से है, पर्दा लटका हुआ है, मौसम गर्मी सर्दी जैसा भी उसको झाड़ें और मिट्टी उड़ती है तो गर्द मौजूद है, वो गर्द इस्तेमाल हो सकती है। और पुराने ज़माने में शायद आपको याद होगा, आपके बुज़ुर्गों में भी शायद ऐसा हो, अक्सर हमने देखा कि हमारी वालदा भी रखती थी और भी बहुत सारी पुरानी माइयाँ जो है ना वो रखती थी कि पाक मिट्टी लेके उसको वो उसका वो एक छोटा सा बना के रोड़ा सा अपने घर में रखा होता था। शायद यहाँ भी होता होगा, देखा आपने कभी? अभी तो नहीं रखते।
नहीं अभी इसको छोड़ दे, वैसे देखा हुआ है। ये मैंने देखा है, सूर्य अक्सर गोल होता है उसको। हाँ ऐसे बना के रखते थे, ऐसे ही कामों के लिए। भाई वो ज़माना था जब ख़वातीन जब तक पाक नहीं होती थी खाना नहीं पकाती थी, बहुत पक्की थी इस बात में, बिल्कुल सही। ठीक है। और आज वो ज़माना क्या कह सकते हैं। यही वजह है आपकी नमाज़ों और हर एक चीज़ की जो कमज़ोरियाँ हैं ना, तो इसी वजह से ऐसा बड़ा मशहूर वाक़या किसी बुज़ुर्ग का। तो एक बार उनको शुरू करो। हजूर बात चाचा ने दिया। आगे वाला जो है सवाल बड़ा पेचीदा और हो रहा है जी, हाँ कि शहरी में दोनों मियाँ बीवी उठ पड़े हैं, हाँ जी टाइम सिर्फ 5 से 7 मिनट, हाँ जी और पका भी कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। तो क्या निहार मुँह 8 पैरा रोज़ा रख सकते हैं? फ़र्ज़ रोज़ा रख सकते हैं, सुन्नत नफल रोज़ा नहीं रख सकते। और दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल के इरादे से मतलब अगर नहा सकते हैं? मकरू है, नहा सकते हैं, गुस्ल दोनों को हो जाएगा। यार नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ठीक, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा कि ज़रा नीचे ना गिरे। ठीक है ना। मस्जिद की सफाई पहली शर्त है। ज़्यादा सवाल कर लो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर वज़ू अगर हवा खर्च हो जाती है उस सूरत में वज़ू तो यानी कि करना ही करना है, फ्रेश या जिस तरह का लें आप। इस्तंजा की क्या उसमें कंडीशन निशालता है? अगर शक है कि कोई चीज़ भी निकल गई है फिर इस्तिंजा करना चाहिए। ठीक है अगर शक नहीं है, यकीन है कि कुछ भी नहीं निकला सवाए गैस के, जी, तो इस्तिंजा करना वाजिब नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा वज़ू करें। हुजूर एक दूसरा सवाल है, यानी कि सुबह के वक्त अक्सर का ड्यूटी का मामला इस तरह का हो जाता है जिस सिलसिले में ना यानी कि नमाज ही बड़ी मुश्किल से पढ़ी जा सकती है, जल्दी पहुंचना होता है और जाना भी लिफ्ट लेके होना। उस सिलसिले में अगर बंदे का वज़ू नहीं रहा तो ज़बानी जो उसको सूरत याद, जिसमें जिस तरह आप और एज एग्ज़ाम्पल सूरत वाक़या मुझे यानी कि ज़बानी याद है सूरत मुज़म्मिल, तो वो मुकम्मल पढ़ सकता है बंदा? बिल्कुल ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। कुरान पाक को बगैर वज़ू छूना मना है, ठीक है, ज़ुबानी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। तीसरा सवाल हुजूर ये है कुरान पाक को ज़ुबानी पढ़ना जी, सिर्फ हैज़ और नफास वाली औरत को मना किया गया। किसको? नफास वाली औरत को मना किया गया। जुनबी को भी मना किया गया, मकरूह है, ठीक है, जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। ठीक है। गुस्ल वाजिब नहीं है, वज़ू भी नहीं है, ज़बानी पढ़ सकता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए का हुजूर अपोजिट है, फीमेल अगर मतलब उसका जिस्म नापाक है हाँ जी, तिलावत कर सकती है वो? नहीं, उसको टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना चाहिए। यही तो कहा है ना कि हैज़ और नफास पीरियड वाले दिन या बच्चा पैदा होने के बाद वाली या गुस्ल वाली, इन तीनों सूरतों में इबारत सीधी करके नहीं पढ़ सकते, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, करके। तीसरा सवाल हुजूर ये है, एक नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन, हिंदू या ज्यूश, यहूदी, आप पे ऐसी एक मतलब सूरत हाल होगी है कि आपको पता है यानी कि अभी जिस तरह कि ये पीर भाई बैठे हैं, तो वैसे एक मिसाल के तौर पर ये चीज़ मैं सवाल के नज़रिए से ये चीज़ बयान करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इनके पास पैसे हैं और मुझे उसकी ज़रूरत है, यानी कि जिस तरह आप दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन ये नहीं देते और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक गैर मुस्लिम के पास है, उससे मदद ले सकता हूँ मैं? ये नहीं शर्त के सूद की शक्ल ना हो तो कोई हर्ज नहीं। साहबा कराम यहूदियों से पैसे लेते थे ना, मौलवियों से कितनी तकरीरों में सुन रखा है। जनादार
हदीसों की किताबों में लिखा है फलाने मौके पे गया है, फलाने बनिए से इतने पैसे उधारे लिए, इतने पैसे रहन पर लिए, फलानी चीज़ रहन पे रख के ले ली, कितने वाक़यात हैं। लिहाजा गैर मुस्लिम से पैसा अगर सूद की शिकों के में नहीं है, शिक सूद की नहीं है, तो फिर कर्जा लेने में तो कोई इतराज़ नहीं है, हेल्प लेने में भी कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा सर, गैर मुस्लिम जो है उसको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सदका भी मकरूह है, लेकिन सदका की गुंजाइश है, कुर्बानी नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, ज़कात की एक शिक है, गवर्नमेंट के पास ज़कात जमा हो और गवर्नमेंट सारे हकदारों को दे ले, तो फिर ज़कात का एक मसरफ़ आखिरी है जिसको मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम लिखा गया है, ठीक है, कि गैर मुस्लिम को मुसलमान करने के लिए या गैर मुस्लिम की सरपरस्ती के लिए बची खुची ज़कात में से पैसे दे सकते हैं, बची खुची में से। यही शिक कुर्बानी में भी लग सकती है, बशर्ते कि वाकई इतना गोश्त हो गया कि बच खुच गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो हजूर एक और सवाल है कि मकसद है कि एक गैर मुस्लिम है, उनकी इबादत गाह का विज़िट कर सकते हैं? एक होता है विज़िट हजूर, एक होता है आप वैसे वहाँ गए, तीसरा है कि आपने मामूल बना लिया है। इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? विज़िट इस सिलसिले में किया जा सकता है कि हम उनका जो इस तरह लगा लें कि जो मज़हब है ना, उसको इस बुनियाद पे, इस नीयत पे स्टडी करना है कि हमने फिर उसको ना अपने मज़हब पे कायल करने की कोशिश के सिलसिले में उसका विज़िट किया है, लेकिन वो मुस्बत तरीके से, जिसमें वो ये नहीं यकदम उस पर ये चीज़ मुसल्लत कर दें एज आ बीइंग मुस्लिम, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा के जिससे वो इंस्पायर हो के हमारे मज़हब की तरफ रजू करें। उलमाए कराम की 2-3 किस्में हैं। एक है जो सिर्फ अपने मसलक तक रहता है, जी एक होता है जो बैनुल मसालिक होता है, जी उसका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होता है, जी ठीक है। वो सबसे पहले अपने मसलक में दरस निज़ामी कम अज़ कम या मुफ्ती जितना तालीम हासिल करता है, फिर दूसरे मसलक को पढ़ता है। अगर पहले पढ़ेगा तो जायज़ नहीं है। फिर उसने अपना मसलक भी पढ़ लिया, दूसरों का मसलक भी पढ़ लिया, अब वो खुद मुफ्ती है, आलिम दीन है फुल, फिर वो दूसरे मज़हब को पढ़ सकता है। आम आदमी को दूसरा मज़हब पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि उसके पास मालूमात नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, वो नीयत रखता है अगले को करने की, लेकिन ये चाल है शैतान की, और फिसल के खुद उधर फंस जाएगा। असल में ये मैं इस चीज़ की तरफ जाना चाहता था जो आपने भी बयान की है कि शैतान आपको इस चीज़ पे उकसाता है, आपको ये ज़हन में ये डालता है कि आप उसका अपने मज़हब के ये, लेकिन ये उसकी एक बहुत ही चाल है। चाल होती है जिसमें आपको ना चाहते भी फंस जाते हैं। क्योंकि उनके जो हजूर जो होता है ना, हमारे जो नज़दीक जो अक़लियत है ना, वो तो क्रिश्चियन है, हिंदू चूँकि सिंध में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये दोनों जो मज़ाहिब है ना, इनकी इबादत में वो लड़कियां भी शामिल होती हैं। तो शैतान को भी पता है ना कि वहाँ लड़कियाँ शामिल हैं, जी जी तो लड़की औरत शैतान का शुरू का हथियार है। जी। अच्छा, तो सदक़े के बारे में बता दें कि सदका किन लोगों पर वाजिब होता है और उनको किनको दे सकते हैं या किस पर वाजिब हुआ? वाजिब तो नहीं, सॉरी, जिनको दे सकते हैं। हाँ, इसको दे सकते हैं, सैयद को नहीं दे सकते, अपने शाख और अपनी असल दोनों को नहीं दे सकते, अपने मातहत को नहीं, अपने जुज़ को नहीं दे सकते। मतलब असल बाप, दादा, नाना, माँ और बाप के ऊपर और नीचे दोनों रिश्ते, इनको नहीं दे सकते। ठीक है। अपने जुज़, बीवी, भाई, बहन नहीं दे सकते, बहन को भी नहीं दे सकते। सदका। ठीक है। अल्लाह
अपनी शाख बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे किसी को नहीं दे सकते। ऊपर नीचे और साथ वाले इनको नहीं दे सकते। कज़न को दे सकते हैं, चाचू का बेटा, मामू का बेटा, ताए का बेटा, फलाना बेटा, ढिमकाना बेटा, सब को दे, बशर्ते कि वो सैयद नहीं है। और ज़कात की यही कंडीशन है। यही हजूर इसमें ज़कात में शायद भाई बहन को दे सकते हैं। ज़कात में शायद भाई बहन को दे सकते हैं। पूरा कालम अलग से पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, लेकिन ये जो ज़कात में शामिल नहीं करेंगे ना, लंबा हजूर ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जी जो कोई इनाम यानी कि विन करते हैं, ट्रॉफी तो होती है, शायद कैश प्राइज़ भी होता होता है। है, ठीक है। उस कैश प्राइज़ से वो मस्जिद के मामलात ये में मतलब ये दे सकता है मस्जिद में? कहीं भी कर सकता है, वो इनाम है, वो तो ज़कात तो नहीं है ना, वो तो जिसको मर्ज़ी दे दे। जी जी। और दूसरी बात उसमें तबलीग आ गई कि वो जिसको इनाम मिला है वो अब उसकी ज़ाती मलकियत है। अब उसकी ज़ाती मलकियत बढ़ने के बाद वो सैयद को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, मस्जिद को भी दे सकता है, कुरान पे लगा सकता है, क्योंकि उसके ज़ाती पैसे हैं। जी उसने अपने पैसों की ज़कात नहीं निकाली हुई, उसको इनाम मिला है और ये उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, खलास। बस और आज के दौर जदीद में माल गनीमत का कंसेप्ट है बिल्कुल है। किस सूरत में? अगर हम किसी मुल्क को फतह कर लें तो, और वो शरई जहाद हो, उसकी हुजूर क्या कंडीशन है शरई लिहाज की? हाकिम वक्त इजाज़त दे, हाकिम वक़्त इजाज़त दे और हाकिम वक़्त की अदालत कायम हो, हाकिम वक़्त आकल बालग मुसलमान हो, ठीक है, और उसके अदालत कायम हो, और फिर वो शरीयत के मुताबिक लफ्ज़ जहाद इस्तेमाल करके जंग शुरू करे। जी उठा के ऐसे यकदम जंग नहीं, उधर से उनका जहाज़ उड़ा, इधर से हमारा जहाज़ उड़ा, वज़ीर आज़म को सोए हुए को जगा के बताया सर 2 जहाज़ आए थे, 2 हमारे उड़े, उनको मार कूट के फर्क कर लिया। ये जहाद नहीं हुआ, जंग हुई। मैंने उसको इल्म ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हाकिम को तो पता ही नहीं है, जी उसको इल्म ही नहीं फौजियों ने खुद ही मीटिंग डाल लिया। क्योंकि तो बाज़ दफ़ा इस तरह हाँ, बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई फौज ने एक दूसरे को कर लिया, वो हुक्मिया जहाद है, क्योंकि वो बॉर्डर पे जहाद के लिए खड़े, ये नियत से खड़े हैं, बिल्कुल इस सही। नीयत से खड़े। लेकिन जो रूटीन में बाकी काम हुए वो चूंकि नीयत मौजूद नहीं है, लिहाजा वो जहाज नहीं है। कमाल है। उसकी वजह बादशाह ने उठा, कुछ भी ऐसा हुआ उन्होंने फ़ौरन जनाब वाले वज़ीर आज़म को उठा के 4 पैसे नीचे फेंका, सदर पाकिस्तान को उठाया, सदर पाकिस्तान को बताया जनाब 2 जहाज़ बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। तो सदर ने कहा जहाज़ का ऐलान करो और 2 जहाज़ भगा दो उनके बदले में। अब सदर के कहने पे काम शुरू हो गया जहाद के लफ्ज़ के साथ। अब उन्होंने मारा कूटा जो कुछ किया, आप जहाद है। यानी कि जहाद में भी अमर लेना जरूरी है। नीयत नहीं है तो एक्सरसाइज है, वर्जिश है, जंग है। लेकिन वो दौर जदीद के हिसाब से तो अभी जो ये जमहूरियत वाला सिस्टम है तो सभी उनका है ना, इसमें तो इस तरह कहते हैं ये उनकी सदर जो है ना, सदर के पास इख्तियार है ना, जहाद का इख्तियार सदर के पास। वो लास्ट क्वेश्चन और दौर जदीद है जिन्होंने खाना ही खावन दे सदका खैरात के हवाले से, हाँ जी, सदका खैरात के हवाले से कहते हैं सिर सदका देना है। हाँ, बाज़ सर के ऊपर से वार के कोई मारना ज़रूरी नहीं है, हाथ लगा देना और नियत कर लेना काफ़ी है। और इसमें खैरात भी आती है, इसमें फ़र्क कैसे इंसान पहचान सकता है कि वो सदका है या नियत से। खैरात? एक में नियत करेंगे कि ये माल सदक़े का माल है, एक में नियत करेंगे ये अल्लाह की राह में खैरात है। नियत बदलने से हजूर ये सदके का माल किसको देना चाहिए? करीबी तरीन गरीब रिश्तेदार, ठीक, उसका पहला हक है। अगर वो उनको पता चल जाए भाई ये सदके का माल ना ले तो सर करीबी तरीन हमसाया, फिर क्या बंदे पूछते हैं ना भाई ये सदके का माल है यार, करीबी तरीन हमसाया, रिश्तेदार नहीं है ना, रिश्तेदार नहीं लेता, करीबी तरीन हमसाया, आपके महल्ले में, आपकी गली में, आपके शहर में, आपके ज़िले में, जो भी करीबी तरीन गरीब तरीन। आखिरी सवाल हजूर करके ना वाइंड अप कर लेते हैं।
इसी का यूज़ है। आज मुख्तसर फरमा दें, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, यतीम है, मस्कीन भी है, माँ बाप नहीं है, तो तालीम वो के लिए ये सारे उनको दे रुझानात को पीछे करके दिला के माजद में दे दे मदरसे में। दे दें। ठीक हो। सर मैं ड्यूटी करता हूँ, अभी मैं इधर घर में 10 दिन के लिए आता हूँ, 3 महीने में उधर रहता हूँ। नमाज में इधर कब मुकम्मल पढ़ूंगा और उधर जाकर कब मुकम्मल? उधर जब आप जाते हैं तो आपकी नीयत कितने दिनों की होती है? उसको पता नहीं ना 3 सर, 3 महीने महीने बाद मुकम्मल। आऊँ, 2.5 महीने बाद आऊँ, दोनों जगह पूरी पढ़नी है, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये आपकी रिहाइश है, वो आपका काम है। मैं कराची जाता हूँ, पहले मैं कराची जाता था कसर पढ़ता था। पिछली बार कराची गया हूँ, मेरी नीयत का कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, भले मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँ लेकिन मेरे पर पूरी ही है, क्योंकि मैं काम की नीयत से आ गया। भाई ये मेरी काम की जगह, जिस जगह आप काम करते हैं, जो आपकी पक्की रिहाइश है, जिस जगह आपकी प्रॉपर्टी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना शरीफ में खलीफा थे, मक्का मुकरमा जाते पूरी नमाज पढ़ते। किसी ने पूछा, हाँ यहाँ आप तो मुसाफिर हैं? मैंने कहा मैं मुसाफिर नहीं हूँ, तुम मुसाफिर हो, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी मौजूद है, मैं इधर मुकीमी हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मौजूद है। आपके बागात थे वहाँ पे, तो जिस जगह आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, जिस जगह पर आपकी रिहाइश पक्की है और जिस जगह पर आपका काम का पक्का डेरा है, यहाँ पर पूरी हो जाएगी नमाज। पूरी हो जाएगी। सर अगर कहीं दूर दराज किसी अचानक कोई वाक़या हो जाए, उधर जाना पड़े, इधर कोई 5 घंटे का या 8 घंटे का 10 घंटे का सब, उधर सर कैसे? घंटों को नहीं गिनना, पुराने टाइम को गिनना है। पैदल सफ़र 3 दिन का जो होगा वो सफ़र के ऊपर आपकी कसर है। एक दिन को या 1.5 दिन को तो नहीं, वो 3 दिन जो है ना, उसको अभी उलमाए कराम ने को 78 किलोमीटर करार दिया जी ऐसे ही है। जी। कि अगर 78 किलोमीटर का सफ़र है तो कसर है, और अगर 70 किलोमीटर है तो फिर नहीं है। क्या हजूर ये क्रिश्चियन हमारे साथ काम वगैरह करते हैं, क्या इनके साथ खाना जायज़ है? अगर पाक हलाल साफ है तो खाना जायज़ है। नहीं सर, वो खाना मुसलमान पका रहे हैं, वही ना, प्लेट सिर्फ। कोई हर्ज नहीं, उसको भी हाथ धुला दो, खुद भी हाथ धो लो, बात खत्म। हमारे साथ तो क्रिश्चियन पकाते हैं, जो वो वो पकाते हैं, जो पकाते हैं, उनके हाथ दावत साफ देते होते हैं या गंदे होते हैं? सारा ये तो ये तो बेहतर हमने जाने देखा का है। क्या मतलब करते हैं। अगर वो ड्यूटी है, साफ, यानी यानी ड्यूटी। पाक क्या बात है, हलाल क्या बात। साफ 3 चीज़ें अगर मौजूद हैं, खाने में कोई यानी इतराज़ हाथ आप धुलवा के इनको खिला सकते बस। नहीं वो अगर जॉब उनके हाथ करते साफ है या नहीं, आप धुलवा दे दो। जॉब भी हाथ करते धो। हैं, हाँ, मेन तो वही है ना कि आप उसको हाँ, उसको तरकीब करवाए ना कि हाथ धो ले भैया जो। हाथ उसने धो लिए, आपने भी धो लिए, एक ही बर्तन में खा लो। जूठा नहीं खा सकते बन के। साहबा कराम भी खाते रहे। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। हाँ, ऐसे कर लेते हैं कि भाई उन्होंने सवाल किया कि क्रिश्चियनों का बैठ के या उनके मिल के खाना, हाँ। तो उनके घरों में से हजूर जैसे पका उनके के वो घर से उनके बर्तनों खाना में से आया। हम तो नहीं खा सकते। उनके घर से खाना आया, और अगर उन्होंने ये सोच के भेजा कि ये मुसलमान है, बर्तन को स्पेशल धोया, साफ खाना पकाया, हलाल खाना पकाया, और अपने हाथ भी साफ सुथरे धो के पका के दे दिया, शर्त ये तो खाना ठीक है। बर्तन भले उनके भले उन्होंने धो दिए ना, एक बार धो दिए, पानी मुतहर है, पानी मुतहर पानी ने उस बर्तन को ताहिर कर दिया, पाक कर दिया, 3 बार पानी धो दिया, निजासत लगी हुई कोई नहीं। ईसाई होने से फी नफ्स से ही नजस नहीं है, अहल किताब है। ईसाई कलमा पढ़े, उसके पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ज़िबा काट दे, ये भी हलाल है। ईसाई का ज़बीहा अल्लाहु अकबर हलाल है, बशर्ते कि उसने तकबीर पढ़ी है। अल्लाहु अकबर। अगर उसने अल्लाह अकबर नहीं पढ़ी फिर खराब, फिर गड़बड़ होगी। साफ पाक हलाल 3 शर्तें मौजूद हैं, उसके साथ एक बर्तन में खाएं, ये बर्तन डालें, उसको चम्मच रखें, आप भी खाएं वो भी खाएं। साहबा कराम खाते थे, जब साहबा खाते थे तो हम और आपकी क्या औकात है? भी जब सहाबा खाते थे उनका ईमान खराब नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होता, टेंशन नहीं लो। साफ पाक हलाल 3 शिकें मद्देनजर रखनी है। इनमें अगर कोई गड़बड़ हो गई है फिर ब्रेक लगा लो। पाक नहीं है
तो फिर तो हराम हो गया। हलाल नहीं है तो गई गाड़ी, साफ नहीं है तो भी शक है कि पाक होगा कि नहीं होगा। 3 चीज़ें मौजूद हैं, चुप करके उसके साथ खाएं। एक बर्तन में इकट्ठे खाना है, उसका हाथ धुलाएं, अपना हाथ धुलाएं, रल के खाएं। हजूर गैस चली जैसे दुआ मंगो चली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या इलाहुल आलमीन या खैरुर राहिमीन। हम सब के इस मिल बैठकर तहसील इल्म की इस मजलिस को तूने पूरा फरमाया या रब्बुल आलमीन। हम तेरी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हैं और शुक्र गुज़ार हैं कि आपने हमको ये तौफीक बख्शी मिल बैठने की, पढ़ने की, इल्म हासिल करने की, इल्म पहुँचाने की। या रब्बुल आलमीन हम सब की इस मजलिस को कबूल फरमा ले, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन ता हयात हमें इल्म हासिल करते रहने और इल्म फैलाते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की समझ और फहम अता फरमा। आपके और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। दीन दुनिया और आखिरत की आफियत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन करम फरमा, मदद फरमा, सेहत। या इलाहुल आलमीन अपना फजल फरमा। जितने लोग आए हैं आज, ये सब इस महफिल में शामिल हुए, इनके आने को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन इनको सिरात मुस्तकीम पर कारबंद फरमा। या रब्बुल आलमीन 5 वक्त बाद जमात नमाज़ सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। आमीन।